So, IPL 2025, we have seen such a slog fest in this IPL. We have seen 220, 230 totals being chased. Just yesterday, we have seen this explosive batting from Sunrisers Hyderabad. There are so many teams who have such a designed batting order that at any point of time, they are able to chase scores 180 plus. Bar one team who is nowhere near to even capable of being chasing 150, and that is Chennai Super Kings batting. So today's video, we are going to talk about how this batting order is failing this dynasty, and are we truly seeing the downfall of a Chennai Super King dynasty? Sumit, I want to ask you. Let's just get straight on with it. We know Chennai Super Kings bowling has been good, okay, and you can't expect your bowling to restrict opponents under 160 or under 170 in every match, because IPL is a total batsman's game, okay. But regarding the batting, Sumit, what do you think? Like, what are the things that they are not doing in this IPL that we have seen almost the same thing winning this IPL in 2023? Let's start with the openers, Sumit. How do you feel the top order is? Their contribution to this Chennai Super Kings team in this season. Top orders are completely out of form, bhai. If you talk about Rachin Ravindra, he was smashing very good in Champions Trophy, but while since he started playing for CSK, I mean for this IPL, in this IPL, we have seen only one good inning from him, and that too, the strike rate was very low. Yes. Not a free flowing innings. Yes. To be honest. बाकी सारे में वो आउट ऑफ फॉर्म मतलब रन ही नहीं आ रहे. Talk about other QE man, Conway. Now he was playing for New Zealand team. Now he is playing for CSK. He is also out of form. Talk about third opener राहुल त्रिपाठी. उसका स्टैट्स बोलूँ ना तो वो लास्ट 2 IPL से तो रन ही नहीं बना रहा राहुल त्रिपाठी विजय हजारे में 8 इनिंग में 20 का एवरेज से रन बनाया था वो. और उसका लास्ट सबसे टॉप जो सीजन गया था ना वो महाराष्ट्र प्रीमियर लीग था, वो भी 2024 का. उसके बाद उसका रन ही नहीं आ रहा है और वो इतना अंडर कॉन्फिडेंट लग रहा है. यू टॉक अबाउट दीपक हुड्डा. Sumit, do you think they have added Rahul Tripathi to an already organized batting order? जैसे हमने देखा कि Rachin, Conway and Rutu, they are very organized batting order. Don't you think adding Rahul Tripathi in that place was just a replacement of any of these three at any point of this tournament? Okay, and Agreed. They might not be expecting any runs from him, but yes, they might be expecting that at least you let us through the power play, and then we will come back to the next batsman and we'll see. Which is terribly failing. Rahul Tripathi is terribly failing at that. And regarding Conway, Sumit, I think जैसा कि ये IPL चल रहा है with people scoring 50 runs in 20-25 balls, okay. So yes, we have seen Conway playing really good against Punjab, but yes, वो strike rate वाला बात आ जाता है. And I don't feel, man, कि ये Rachin Ravindra, he's not getting onto it. I don't know if he understands the responsibility of being an opener for a team like Chennai Super Kings. Okay, for a team like Chennai Super Kings, it has always about the attacking openers that they had: Murli Vijay, Michael Hussey, Brendan McCullum, Faf du Plessis, Shane Watson, Hayden, everybody. In the throughout their history, जो ये dynasty बना था, it was always about going out to the bowlers. Okay, so sticking your batting position, being there for at least 8-9 overs. I don't think Rachin understands the responsibility yet. Okay, and I think मैं उसको बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगा. वो बहुत अच्छा प्लेयर है यार, बस वो आउट ऑफ फॉर्म जा रहा है. वो टच में ही नहीं है वो ट्रैक पे नहीं है. एंड आई थिंक विथ फेलिंग टॉप ऑर्डर हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि एक मिडिल ऑर्डर सॉलिड हो. ओके, सो विथ मिडिल ऑर्डर आई डोंट नो मैं कहाँ से शुरू करूँ उनकी खामियां निकालने का. विथ मिडिल ऑर्डर इट हैज बीन टोटल शैम्बल्स इन दिस सीजन, टोटल शैम्बल्स. Sumit, how do you think, being a T20 World Cup winner, Shivam Dube in this Chennai Super Kings team, how do you think is he fitting into this batting order? अरे शिवम दुबे ठीक है, वो खेल लेगा. उससे पहले हम लोग को लेट्स टॉक अबाउट दीपक हुड्डा. मैन, दीपक हुड्डा का वो चल ही नहीं रहा है लास्ट 2-3 सीजन से. मैं बता रहा हूँ, फॉर एनी प्लेयर हु हैज प्लेड मोर देन 15 इनिंग्स, राइट, उसमें से सबसे लोवेस्ट एवरेज दीपक हुड्डा का है. 10 का एवरेज है, 10 का. तो को याद है ना भुवनेश्वर कुमार का वो स्पेल, टच ही नहीं कर पाया उसका बॉलिंग. पता नहीं क्या
पर दीपक हुडा यार 3 साल पहले बहुत अच्छा प्लेयर था मेरे को आई रिमेम्बर राइट आई थिंक पंजाब के अगेंस्ट उसने बहुत अच्छा रन बनाया था और वो क्वालिटी था उसका कवर का खेलना वो छक्का मारना भी अच्छे से मारता था पर पता नहीं यहाँ पे सारे के सारे आउट ऑफ टच लग रहे आई डोंट नो क्या हो गया वो मे बी लास्ट जो वो लोग पिक कर रहे थे राइट ऑक्शन में वो लोग रेपुटेशन पे जाके पिक करा मे बी इसलिए वो लोग इस साल आउट ऑफ टच है पर अब कब आएंगे अभी तो ऑलमोस्ट 5 मैच तो वो लोग हार ही गए अब एंड उसके यहाँ से कमबैक करना इट्स वेरी हार्ड। ऐसा नहीं है कि इट इज इम्पॉसिबल, वी हैव सीन टीम्स मेकिंग कमबैक फ्रॉम वर्स्ट सिचुएशंस, बट यहाँ से कमबैक करना बट इट्स वेरी हार्ड। बट इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल it's almost impossible because why we are saying is we are not seeing that intent from the batsman. You know, against that Delhi game, I was so heartbroken to see Vijay Shankar and Dhoni batting out in the middle, just looking to rotate strike. That's it. विजय शंकर इज कम्प्लीटली आउट ऑफ फॉर्म सारे को पता था कि वो आउट ऑफ फॉर्म है पता नहीं उसको ऑक्शन में क्यों लिया लास्ट सीजन राइट सिर्फ 9 कॉम्पिटिटिव मैच खेले उसने और उसमें भी उसमें 20 का एवरेज है And विजय शंकर someone का like Vijay Shankar who is coming at number 4 for Chennai, who is उसको देख के ऐसा लगता है कि he doesn't have 80% of cricketing shots in his book. Okay, he just has taking singles. वो जैसे जैसे स्क्रैची बाउंड्रीज ले आता है, नॉट मिडलिंग द बैट एंड गूगल ही नहीं पढ़ पा रहा है वो मान नहीं पा रहा है। तमिलनाडु में बड़ा हुआ है खेल का वो गूगल ही नहीं पढ़ पा रहा बताओ और ये सीजन हमने देखा है चेन्नई को कि दे हैव प्रोमोटेड अश्विन एज अ बैट्समैन, क्योंकि उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के लिए अच्छा खेला था एज एन ओपनर आल्सो एंड समटाइम्स एज अ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन आल्सो। कोई अच्छा नहीं खेला था भाई अगर तुम उनका स्ट्राइक रेट देखोगे ना वो बस फिलर थे फिलर बट आई थिंक चेन्नई ने उस पे ज्यादा इन्वेस्ट करने का ट्राई किया कि लेट्स टेक इट। मेरे को पता ही नहीं अश्विन अन्ना को क्यों लिया वो लोग मे बी जस्ट बिकॉज दे वांट टू फेयरवेल देना चाहते हैं चेपॉक स्टेडियम में जाकर उनको और ना आई डोंट थिंक कि वो T20 किसी भी T20 टीम में वो बिलोंग करते हैं पहला बात सेकंड थिंग ना लास्ट सीजन वो उनको यूजी चहल ने ओवर शैडो किया था हाँ ठीक है वो इकोनॉमिकल डाल रहे थे ओवर्स पर ना उनका अभी देखा नहीं वो कितना 45 रन हर मैच में ऑलमोस्ट इतना ही मार खाए जा रहे हैं वो कंटिन्यूसली बैटिंग से वो रन बनेगा नहीं स्लॉगिंग कितना चलेगा बताओ 40 की उम्र में तुम स्लॉगिंग एक्सपेक्ट करेगा अश्विन अन्ना से सी मेरे को वो टीम उनको लेना ही सबसे पहला ब्लंडर था 9 करोड़ देने का जो डिसाइड किया उन लोगों ने अश्विन पे सी मेरे को उसी दिन पता चल गया था ये गड़बड़ होगा ठीक टॉकिंग अबाउट अश्विन राइट आओ उनके काउंटर पार्ट रविंद्र जडेजा को सबसे पहले रिटायरमेंट लेना चाहिए एमएस से भी पहले रिटायरमेंट लेना चाहिए वो किसी भी टीम में अभी फिट नहीं हो रहा है उसके बैट पे ना मैं बता रहा हूँ एक स्टैट बता रहा हूँ मैं देख के मैं हैरान हो गया था 2020 से 6 सीजन आईपीएल का खेला उन्होंने उसमें से 4 सीजन में उनका बॉलिंग एवरेज 45 से ज्यादा था एंड और बता रहा हूँ और सुनो भाई और सुनो लास्ट 14 T20 आईपीएल मैचेस में राइट 10 मैच में वो विकेटलेस गए और लास्ट 20 मैचेस में सिर्फ 10 विकेट्स हैं उनका T20 गेम में बैटिंग तो उनसे हो नहीं रहा बैटिंग कभी भी नहीं हुआ भाई वो थोड़ा देर के लिए वो पीक आया था वो भी टेस्ट क्रिकेट में पीक आया था अब वो भी नहीं है एंड ये बात सच है कि जो और सब जो बोल रहे फील्डिंग का ना हाँ एक और बात रौनक ऐड करने दो और सब जो बोल रहे फील्डिंग में भी अब उतना दम नहीं दिख रहा है जो पीक जडेजा पे हाँ वो एक्सपेक्टेड है कि चलो एज हो रहा है तो वो थोड़ा स्लो आएगा पर ना बैटिंग में हो रहा है ना बॉलिंग में हो रहा है ना फील्डिंग में हो रहा है 18 करोड़ तो जडेजा को मेरे को नहीं लग रहा वो परफॉर्मेंस के लिए दिए उन्होंने एंड ये वन ऑफ द थिंग्स जो उसमें तुमने बोला कि लाइक दे आर ट्राइंग टू गिव अश्विन अन्ना द फेयरवेल सो आई थिंक ये मैनेजमेंट भी बहुत इमोशनली ड्रिवन है चीजों को लेके क्योंकि उनको धोनी को एक फेयरवेल देना है उनको अश्विन को एक फेयरवेल देना है और पता नहीं व्हाई दे आर बैकिंग जडेजा सो मच दे आर रिटेनिंग प्लेयर्स लाइक जडेजा यार जबकि जडेजा 18 करोड़ डिजर्व ही नहीं करता है भाई नहीं करता नहीं एमएस मेरे को बोल रहा ना एमएस को भी 23 को रिटायर ले लेना चाहिए था ये लोग मैनेजमेंट सीएसके मैनेजमेंट जो बड़ा ब्लंडर किया ना इनके पास मेगा ऑक्शन था अभी वो लोग चाहते तो अपना टीम को अच्छे से बिल्ड कर पाते पर उन लोगों ने क्या किया वही पुराने प्लेयर्स पे हम लोग बात कर रहे हैं पुराने प्लेयर्स पे उनको बैक करा ठीक है अगर वो लोग चल भी जाएंगे राइट मेरे को लग ही नहीं रहा है कि वो लोग 180 190 कॉन्स्टेंटली मारेंगे ऐसा बैटर ही नहीं लग रहा मेरे को कोई है उनके पास एंड सुमित हम लोग उस दिन केकेआर के मैच में हमने एक चीज देखा कि
इट्स लाइक ऑल अबाउट फॉलिंग कार्ड्स. कोई आके रिस्पॉन्सिबल नहीं होना चाहता है कि वहां पे वो टिके. एंड इट्स नॉट अबाउट कि केकेआर की बॉलिंग अच्छी थी. नो, इट वाज द वर्स्ट बैटिंग आई हैव सीन इन माय लाइफ इन आई. ओनली तुमको वन. पता है कि नहीं, सीएसके प्लेड 61 डॉट बॉल्स इन देयर इनिंग्स और केकेआर ने 61 बॉल पे ही मैच जीता है। ट्रू. एंड 30,000 पेड़ लगा के क्या करोगे भाई, जब तुमसे कुछ बैटिंग नहीं हो रही है, तुमसे कुछ हो नहीं रहा है, और तुम ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि फैंस हमेशा तुमको बैक करेंगे ये परफॉर्मेंस को लेके. ओके फाइन, हम लोग ने तो 5 आईपीएल जीता है. इट्स अबाउट हिस्ट्री. इट्स मेरे अबाउट. को तो चेपॉक का जो ऑडियंस है ना उसको भी तरस आता है यार, कितना शर्म आने वाला बात है बताओ। 7वां विकेट जा रहा है 70 पे और दे आर चीयरिंग फॉर एमएस दे आर मैन। चीयरिंग फॉर उस एमएस. समय स्टेडियम खाली करके चले जाओ तब इन लोगों को कुछ अकल आएगा थोड़ा। इट इज रियली performance डिसहार्टनिंग, क्योंकि को पूरे फैंस लास्ट बॉल तक रुके रहते हैं कि धोनी एक छक्का तो छक्का मारेंगे. देखने के लिए तुम इवन दो वो दिमाग 40-50 रन से मैच हार रहे हैं. एंड दिस इज वेरी डिसहार्टनिंग टू सी. एंड let's talk about the elephant in the room, MS Dhoni. Okay, one thing. मेरे को नहीं लग रहा है वी शुड टॉक अबाउट एमएस मैन. पार्ट टाइम क्रिकेटर से तुम क्या ही एक्सपेक्ट करेगा बताओ। पार्ट टाइम स्ट्रॉबेरी फार्मर, Yeah, पार्ट टाइम क्रिकेटर क्या। you- मैं को समझ उनको तो पहले ही फ्लेमिंग के साथ बैठ के गाइड करना चाहिए था यंगस्टर्स को। I think he should just shift his role to mentor role. Yeah, और राह सब बोलता है कि 43 की उम्र में आके छक्का मार देता है। भाई 43 की उम्र में जो 25 साल 30 साल क्रिकेट खेला वो भी छक्का मार लेगा। obviously, It's not about और MS. सबसे बड़ी बात ये है कि लोगों ने उनको बहुत ट्रोल किया उनके डिसीजंस को लेके. हमने लास्ट मैच में देखा, he has been the captain. So everybody should understand it is not a captaincy issue, it is a failure of batsmen, including Agree. MS Dhoni, I would say. ठीक है, तुम जो 40, Correct. अगर वो बंदा 43 इयर्स की उम्र में छक्का मार रहे हो और तुम उसको फ्लेक्स कर रहे हो, तो तुमको ये भी अंडरस्टैंड करना चाहिए कि वो बंदा अगर आए उस पॉइंट पे, he should be able to take it to a respectable score, जो वो पहले करते थे. एंड एक्सेप्ट कि अभी धोनी के पास वो रिस्ट मूवमेंट नहीं है, अभी धोनी के पास वो शॉट्स नहीं है. ठीक है, यू कांट एक्सपेक्ट हिम कि वही फिनिश कर लेगा. पर हाँ, यू डोंट हैव द राइट टू फ्लेक्स हिज नंबर ऑफ सिक्सेस at this point of time. It is just shameful. It is just shameful. Okay, and later on अगर मैं बोलूं कि ये पूरी धोनी की गलती है, ऋतु की गलती है, each and every person of that team is responsible for this downfall, including the senior players, including the players that were bought in this auction, including the management. This is a very big management blunder and failure that we have seen. और देखो, मैं मी बीइंग अ सीएसके फैन, मैं बोलूंगा ओके, आई रियली वांट देम टू कम बैक टू द नंबर 4. सी, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इन आईपीएल इट्स ऑल अबाउट हु इज गोइंग टू बी नंबर 4, बिकॉज मुझे लगता है कि 1, 2, 3 प्लेसेस आर ऑलमोस्ट बुक्ड विद द क्वालिटी ऑफ क्रिकेट दैट वी आर सीइंग. आई वुड नॉट से क्वालिटी ऑफ क्रिकेट, क्वालिटी ऑफ बैटिंग. ओके, बट ये 4th टीम जो आने वाली है, चेन्नई डजंट डिजर्व इट. Chennai doesn't deserve to be in the IPL playoffs, and I don't want them to be. But the way they are playing, they are the worst team in this IPL this season. Worst, and I don't want to, take up the fact कि जैसे मुंबई भी लास्ट कर रही है, पर मुंबई के पास वो इंटेंट दिखता है. मुंबई के पास वो बैट्समैन, उन्होंने जो उस दिन ऑलमोस्ट 220 चेस कर लिया विद पांड्या एंड तिलक वर्मा. मैन, दैट वाज क्रेजी. टॉक अबाउट आरसीबी. नो, आरसीबी जो इतने सीजन हार रहे हैं उसमें हर सीजन में उनका इंटेंट दिखता था. हाँ, ऐसा हर नहीं कि season. वो रन ही नहीं बना रहे, वो रन बना रहे थे पर उनका बॉलिंग कहीं मार खा रहा था, कहीं बैटिंग नहीं क्लिक कर रहा था, पर इंटेंट पे कोई डाउट ही नहीं था उनके टीम का. पर सीएसके की इस जो 2025 की जो टीम है सब आउट ऑफ फॉर्म है यार. प्लस बैड डिसीजंस टू प्ले अश्विन एंड जडेजा इन क्या उनको क्या लगता था कि चेपॉक के साथ के साथ में वो लोग जीत जाएंगे स्पिनिंग अटैक से. उनका बैटिंग तो रन ही नहीं बना रहा है भाई. 15 साल बाद आके हरा के जा रहे हैं भाई ये. हाँ. और वो लोग चेपॉक के भरोसे कब रहेंगे? यू नो, इन चेपॉक केकेआर ने 3 स्पिनर्स लाए और वो लोग के स्कोर 100. वही बोलो ना, उनके 3 स्पिनर्स क्वालिटी हो गया. सी हम लोग हमेशा नाम पे नहीं जा सकते. अश्विन एंड जडेजा एट देयर पीक यस, अनबीटेबल थे. यस. पर अभी तो उनको भी सी गेम में इसलिए तो सब रिटायरमेंट लेते हैं ना कि एक समय आ चुका है, इसके बाद नहीं हो रहा गेम. पर आई डोंट नो, मेरे को समझ ही नहीं आया उन लोग को क्यों 18 करोड़ जडेजा को दिया, 9 करोड़ अश्विन को दिया. इट्स ऑल अबाउट, मतलब सारा मिस्टेक ही था भाई. अभी एंड दे नीड टू सिंपल वन थिंग सुमित, 3 प्लेयर्स को रिटायर ले लेना चाहिए. पीपल शुड नो हु आर दोस 3 प्लेयर्स, इफ यू आर स्मार्ट एनफ. मैनेजमेंट को एक नया अच्छा मिडिल ऑर्डर बैट्समैन ढूंढना चाहिए, एक अच्छा टॉप ऑर्डर बैट्समैन ढूंढना चाहिए जो रिलायबल हो, जो पूरी तरह से रिलायबल हो, केपेबल हो कि अकेले वो मैच जिता सके. सो मैनेजमेंट, यू हैव अ वेरी बिग थिंग टू डू.
उनके पास वंशवेदी, कंबोज जो बॉलिंग अच्छा करता है, गुरजनप्रीत सिंह कंबोज भी है, लास्ट मैच खेला है भाई, लास्ट मैच। एक रशीद करके, हम्म शेख रशीद करके। हम्म पर चांस दो ना, शेख रशीद को एंड 3 साल से वो लोग टीम में रखे हुए हैं और एक मैच नहीं मिला उसको अभी तक। एंड वन थिंग सुमित कि हाउ मुंबई इंडियंस स्काउट्स आर फाइंडिंग सो मच गुड क्रिकेटर्स। और गुजरात में 4 तमिलनाडु के प्लेयर्स खेल रहे हैं, लोकल तमिलनाडु प्लेयर्स, एंड विथ लीग लाइक TNPL, आप वहां से कम सेलेक्ट करो यार। There are so many talents that can still play. They are IPL ready talents, and you are just closing your eyes in front of that IPL ready talents, and you just want some players कि आओ नॉस्टैल्जिया में खेलेंगे हम लोग, नॉस्टैल्जिया में ये क्लब को चलाएंगे। ऐसा नहीं चलता, नहीं चलता कर। बिल्कुल। So I think huge management failure. I don't know what to say. I am in my emotional shambles. I mean emotional shambles कि मैं ये चेन्नई सुपर किंग्स टीम को अभी जो सपोर्ट कर रहा हूँ, हर एक मैच it's painful to see. It is painful to see with that intent or anything. और लोग बोल रहे होंगे कि पिछले मैच में वो धोनी का डिसीजन फेदर था, नहीं था, अल्ट्रा एज व्हाटएवर, पीपल आर स्टिल डूइंग दैट। भाई उनसे एक बॉल भी लगता है भाई, तुमको पता है कि नहीं? MS अगेंस्ट वो क्या बोलते हैं, सुनील नारायण, ये इतने साल 16 साल 17 साल खेला he has always pocketed him. एक चौका लगा, वो भी एज से, इनसाइड एज लगा था, बोल्ड होते थे, बच गए थे वो। How crazy this started भाई। सुनील नारायण ने हमेशा पॉकेट किया है, हमेशा पॉकेट किया है। एंड मैं तो बोलना भी नहीं चाहता कि पता नहीं कौन ये बैटिंग ऑर्डर डिसाइड कर रहा है यार। 4 पे आ रहा है शंकर, 6 पे आ रहा है अश्विन, 5 पे आ रहा है एक बात पता है धोनी। मेरे को, इतना खराब लगा ना KKR वाला मैच में, क्या क्या MS को बचाने के लिए, MS को और नीचे आने के लिए उन लोगों ने किसको सेक्रीफाइस करा? पति राणा को सेक्रीफाइस करा, और किसके अगेंस्ट? हुड्डा को लाके। देखा नहीं उन लोगों ने, जैसे विकेट गिर गया तो हुड्डा को सब्स्टिट्यूट कर दिया और पति राणा आउट हुआ बॉलिंग में। वो बहुत ब्लंडर था, बहुत बड़ा ब्लंडर था यार। इतना घटिया डिसीजंस कैसे ले रहे हैं वो लोग, मेरे को समझ नहीं आ रहा। डिसीजंस कौन ले रहे? स्टीफन फ्लेमिंग इज रिस्पांसिबल, दिस CSK मैनेजमेंट इज रिस्पांसिबल, MS धोनी इज रिस्पांसिबल, whoever it is, guys, it's time to wake up or just leave this cricket club. It's simple as that. अगर मैनेजमेंट से नहीं हो रहा है, आप दूसरे मैनेजमेंट को शिफ्ट करो। आप हेड कोच एक ही को 17 साल 18 साल से रख रहे हो, इट्स फाइन, उन्होंने जिताया है, पर आई थिंक इट्स टाइम टू लुक फॉर न्यू मैनेजमेंट। एवरीथिंग, आपको अभी एक चांस मिला है कि आप ये डायनेस्टी को वापस लिखो, राइट दिस, यू बिल्ड दिस अगेन ब्रिक बाय ब्रिक, और आप उसी ब्रिक को फेंकने के लिए तैयार हो जस्ट बिकॉज पुराने ब्रिक बहुत अच्छे थे। दिस इज नॉट हाउ यू प्ले क्रिकेट, दिस इज नॉट हाउ। एंड पीपल हु आर टेलिंग कि सुरेश रैना होते तो ऐसा होता, राइडू होते तो ऐसा होता, वॉटसन होते तो ऐसा होता। भाई वो लोग भी अपने फॉर्म जब पीक पे थे तो कंट्रीब्यूट तो करके गए ना, अब क्या उन लोग को वापस रिटायरमेंट से लेके आओगे क्या? और भाई वो लोग भी फर्स्ट बॉल में आउट हो जाएंगे तो तुम लोग गाली दोगे। इलॉजिकल थिंकिंग है सर। that's not how cricket is being played। भाई हमने उनके बिना भी IPL जीती है, उनके साथ IPL जीती है, ठीक है। करंट सिचुएशंस में किनको लेना चाहिए, कौन से प्लेयर्स को लेना चाहिए और कैसे मूव फॉरवर्ड करना चाहिए, उस पर ध्यान दो, रादर देन ये कि तुम ये नॉस्टैल्जिया वॉर चला रहे हो कि ये चाहिए वो चाहिए। सब लोग अपने पीक में कंट्रीब्यूट करके गए, एंड राइट नाउ वी आर सीइंग द वर्स्ट सीजन ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स हिस्ट्री। ओके, यस, देयर इज वन थिंग, 2010 में इन्होंने इससे भी खराब स्टार्ट की थी, दे हैव मेड अ कमबैक, बट उस टीम में जो प्लेयर्स थे वो जान देने वाले प्लेयर्स थे कि वो हर बॉल को जान देंगे, एक चौका नहीं जाने देंगे, वो चौके भले ही वो 3 रन ले ले, 1 रन भी बचाऊंगा मैं, वो इंटेंट इस बार इस टीम में है नहीं। एंड दिस इज एग्जैक्टली, मैं ना क्या देख रहा हूँ, अगर ये सारे के सारे फॉर्म में आ भी जाए ना, फिर भी इनसे 180 चेस नहीं होगा। दिस इज फेलियर ऑफ क्रिकेट भाई। ये इनसे अब वो हो नहीं रहा है, इनके पास वो है ही नहीं। अगर ये लोग 10 ओवर में 100 रन बना देना, अगले 10 ओवर में 40 बना के ऑल आउट हो जाए, मुंह से गाली निकल रही है पर मैं बोल नहीं सकता। इट्स जस्ट डिसहार्टनिंग गाइस। सी गाइस, आई डोंट नो व्हाट योर थिंकिंग इज, आई डोंट नो व्हाट यू माइट बी थिंकिंग कि किसको रिटायरमेंट लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। दिस वाज आवर ओपिनियन, बट टू बी ऑनेस्ट, नॉस्टैल्जिया मर्चेंट बन के मत रहो। Think about now. Think about players that we can buy in the next auction and how we can move forward. With this, I think we can conclude this video. Know in the comments what do you think is the main reason this Chennai Super Kings is failing. Till then, bye.